Good evening and welcome to yet another show of Kam Ki Baat. This is a special episode that we are doing, a second episode that we have started regarding the GM crops. Now, many of us are not aware that the government of India has started something called, they have given a permission for open field trials of HT mustard, which is called herbicide tolerant mustard, and this is another a genetically modified crop. Now we don't know what genetically modified crops are and what can it do to us, to our health, to our environment, to our farmers, and to our agriculture. Today we need to understand how GM seeds, the seed which is जो हमारे पूरे खेती उसके ऊपर निर्भर है, जैसे हमारे जो बीज से ही सब कुछ होता है. Everything boils down to the seed, and seed is, in fact, after earth, it is a seed that lays the foundation of any culture, agriculture, civilization, everything, because that's where all our food comes from, right? So it is very, very important for all of us to understand how the entire seed game has been playing out for the last 70 years, especially in India since the 1960s, with the Green Revolution. And now a new page is being turned with the GM crops, GM seeds. We have to know what are the imminent dangers that are there for us. So for this, today I invite Dr. Donti Narasimha Reddy. He has been a policy analyst on multiple subjects. He holds a PhD. His basic first subject that he has dealt with was nuclear energy policy. He has been very active as in the anti-nuclear movement since his student days. That is like way back in the 1980s, 85, 88. And ever since he has worked on nuclear issues, but he has also been very, very active working with the farmers, working with the handloom sector, and also in urban development and water issues. So welcome, Dr. Danti Narasimha Reddy garu. Thank you for joining us today. And he's joining us from Hyderabad right now. And Dr. Reddy, I want to ask you one basic question. You had been inspired because of some local matter, local issue that happened in Nalgonda district where you hail from, regarding the nuclear matters. So you studied nuclear energy policy as your PhD subject. And as you had mentioned earlier also, this is the only PhD on this particular subject. Now, nuclear is also, again, you know, politically incorrect subject, right? We are not allowed to speak on that. And today we are talking about GM crops. Now, what interested you as a nuclear policy student or an anti-nuclear activist to get into agriculture and matters of agriculture? Brief. Can you tell me? Actually, during my graduation, I started off on this anti-nuclear campaign, but later we got involved in industrial pollution activities around Patancheru and other areas. In 1990, we brought out a status report on environment in Andhra Pradesh, where we looked at all other sectors, including agriculture. In 95, we got involved in watershed activities. Even from 1990, we started tank restoration management projects in Chittoor, Nuzuvidu areas of Andhra Pradesh. So gradually, I was responding to this criticism that as environmental activists, you keep stopping this project or protesting this activity. So I said, what is the positive program you have? So that's how we gradually, through watershed activities, we started looking at agriculture and organic farming. And later I became a part of this organic movement in India. But now I moved out into agroecology perspective. डॉक्टर रेड्डी, काफ़ी लोग हमें हिंदी में बात करने के लिए पूछ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हम बीच में हिंदी में बात करेंगे. आप सब थोड़ा-सा मतलब माफ़ कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी इज़ नॉट, मतलब वो बहुत ज़्यादा हिंदी में बोलने की उनकी आदत नहीं है, तो बीच में वो भी कोशिश करेंगे हिंदी में बोलने के लिए. लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए, इट्स नॉर्मल सिंपल इंग्लिश फ्रॉम इंडिया, सो आई एम श्योर एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. थोड़ा-सा ध्यान दीजिए. So Dr. Reddy, मेरा पहला प्रश्न ये है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज,
this entire thing, the seed is crucial for everything, right? Now they say that in India we had to bring in the green revolution, which came. Please mute your mic क्योंकि मेरी आवाज आ रही है. Dr. Reddy, please mute your mic right now. Yeah, when you start speaking, you can switch it on. So, what was Green Revolution really a necessity? Because they started these short duration varieties, they brought this PL 170 varieties, and then they said these new hybrids are going to solve India's food security issues. Now, was there no alternative to that? Now, what was the real thing behind that? Because today we are going to talk about how agriculture from being, मतलब जो खेती जो किसान के हाथों में से निकल के कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई है, तो उसके बारे में है, उसका बीज, pun intended, उसका बीज ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ है, हरित क्रांति से हुआ है. So can you just tell a little bit on that? जैसा आप बताया, आज जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है. सरकार आपको पिछले 50 साल से हमें बता रहे कि अपना कृषि क्षेत्र में यील्ड ज़्यादा नहीं है, तो यील्ड बढ़ाने के लिए हम ये हाइब्रिड वैरायटी लाना बोल के एक कंडीशन क्रिएट करा गया 1965 में. 1965 1964 उस टाइम पे ये हमें हमारा पॉलिसी में बदलाव लाया गया कि हरित क्रांति टेक्नोलॉजी से ही हमारा जो पॉपुलेशन है उसके लिए खाना देना पड़ता, वैसा बताते गए. लेकिन उसके लिए ज़्यादा वहाँ शुरुआत वहाँ हुआ, और उस टाइम पे भी फूड सिक्योरिटी का बात हुआ. फिर उसमें बीज बदलने से यील्ड बदलता बोल के हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज लाए गए. फिर भी वो हाइब्रिड्स के लिए फर्टिलाइजर चाहिए था, नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर्स, और उसके साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स का जरूरी था. लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए सब्सिडी ज़्यादा दिया गया. तो 1970s में बैंक जो लोन दिया गया, सिर्फ ये बीज आप लिए तो उसको सब्सिडी दिया जाएगा, ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी आया. फिर फर्टिलाइजर भी सब्सिडी में दिया गया. तो 80s लेट 80s में किसान उसको मानने लगे. 20 साल तक ज्यादातर उसका असर नहीं था, लेकिन लेट 80s में वो शुरुआत हुआ जब कॉटन फार्मर्स लिए, और 1989 में पहली बार कॉटन फार्मर्स का सुसाइड, खुदकुशी शुरू हुआ हमारा देश में. पहली बार वहाँ शुरू हुआ. फिर बाद में ये बीज का उस टाइम पे एक पब्लिक सेक्टर सिस्टम बनाया गया. सीड सप्लाई चेन पूरा यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होके, फिर उसको फाउंडेशन सीड बना के, फिर उसको ब्रीडर सीड बना के, फिर किसान को देने का एक सिस्टम था. फिर इसमें बाद में प्राइवेट कंपनीज को लाया गया. तो ये प्राइवेट कंपनीज ये पब्लिक सेक्टर सीड को लेके उसको दुगना करके मल्टीप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम आया. तो इसके लिए एक सीड एक्ट भी लाया गया. वो सीड एक्ट भी 1960s में लाया गया, 1966 में. तो अभी बाद में 2002 में पहली बार प्राइवेट सेक्टर भी ब्रीडिंग कर सकता बोल के एक कमिटी डाल के, वो कमिटी का रिकमेंडेशंस में लाया गया. वो उस रिकमेंडेशन के बाद में अपने को ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इंट्रोडक्शन हुआ. तो ये जीएम मस्टर्ड का भी हिस्ट्री वहां से शुरू होता. Dr. Reddy, I want to ask this question. One is,
you are saying that the farmers did not accept hybrids almost as late as 85, right? So the claim that the green revolution, which was brought in the 60s, actually solved the entire food problem of India. How true is that? I mean, you can talk in English, I think maybe it's better. Yeah, basically I think आंकड़े बताते हैं कि अपना जो धान है वो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा कुछ 100 मिलियन टन से आज 2074 मिलियन टन बढ़ गया इसलिए बढ़ गया कि क्योंकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आया बल्कि लेकिन इसमें क्वालिटी कितना गया इसका जिक्र कोई भी नहीं करता जैसा यील्ड बढ़ता गया उसका क्वालिटी कम होते गया और दूसरी बात है ये जो सीड रिप्लेसमेंट रेट बताते हैं हर सीड पहले हमारा जो देशी सीड होता था उसको किसान खुद ब्रीडिंग करता था लेकिन अभी हाइब्रिड सीड क्या होता है आपको हर 2 साल 3 साल बदलना पड़ता तो सीड रिप्लेसमेंट रेट एक इंडिकेटर है गवर्नमेंट को ताकि हर 2 3 साल एक नया हाइब्रिड सीड लाया जाएगा तो इससे किसान को डिपेंडेंसी बढ़ गया पहले कि जो बीज को पहचानने में बीज का यील्ड बढ़ाने में जो किसान का जो रोल था वो कम होता गया और ज्यादातर ये जो हाइब्रिड सीड खरीदा गया उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ते गया और किसान का ज्ञान तो जो था वो कम होते गया इसलिए आज बहुत बड़ा बुरा असर इसका है कि किसान आज बीज के बीच में कौन सा बीज कैसा है पहचानने में उसका ज्ञान बहुत कम है आज के नव युवा पीढ़ी किसान कोई है तो उसको तो बिल्कुल जीरो ज्ञान है उसके बारे में आई कांट हियर यू नो नहीं नहीं मैं म्यूट में थी ओके सो माय so let's talk a little bit in English. My question is, I'm still, you haven't answered my question. That is, was the food security really achieved in the 60s itself? Because if the farmers have not used hybrids until 80s, how did they claim that the food security या got solved in 5 or 10 years? 5 10 साल में कैसे हो गया? I mean, you can speak in English maybe. Yeah, basically, food security is not just a function of high yield of agriculture. Food security means it is also about distribution. It is also about affordability. So, the publicity or the for wrong kind of campaign being done that we had a famine was debunked by a paper done by a university in America. We were told that there were famines, Bengal famine, and lot of famines. But they looked at the data and they said, yeah, actually, famine definition itself is that there is lack of access to food. It's not about production. It is lack of access to food. But even that was debunked because they looked at the soil moisture at that time and they said this is not, it was not about agriculture production itself. So, but data actually that's another issue. Data in 1960s, 1970s, and now in 2022, the data integrity is always questionable because earlier, it was the question was on consolidation. We had a system of village level data collection on agriculture, crop, and the production yield. Gradually, it used to come up to the national level. But most of the village data was not gathered in the initial years, 1960s and 70s. Now in 2022, this is more paperless data collection, and today data is still problematic.
One indicator I'll tell you recently, when Russia-Ukraine war began, immediately there was shortage of wheat in Europe and other places. So Narendra Modi ji immediately said, India will supply wheat to the world, and within 10 days they assessed the production and they realized that our production tanked by 30% because of rains and whatever. So then again they imposed restrictions on wheat exports. So this shows, there are many examples. So the data of food production is still problematic. And Yes. then the, of course, hunger is there. Hunger, even today it is there. It is there during COVID-19 pandemic as well, but that's a distribution problem as well. So we are Yes. not looking at distribution. When you look at food corporation of India go downs, they are full of rice, full of wheat, but there are thousands of lakhs of families where they don't get even a square meal. So we have not worked on the distribution, and we continuously harp on yield and production volumes. So this dichotomy is not understood easily. Yeah. So basically, was there really a food shortage in those days? No, as I mentioned, recent studies show that there was उस not a समय shortage, उस and समय मतलब and 19 it was 1960 1965 में जब ये बीज लाए गए थे हाइब्रिड बीज उनका तो एक और चीज है कि ये भी बताया जाता है कि उसी समय इरिगेशन भी आया था और इट इज बिकॉज ऑफ द इरिगेशन दैट द यील्ड्स हैव गॉन अप सो हाई क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 1965 से अभी तक यील्ड तो घटते जा रहा है एक्चुअली देखे तो बिकॉज दे आर ओनली लुकिंग एट द आउटपुट 30 बोरी आया है कि नहीं आया लेकिन कितना इनपुट जा रहा है यूरिया बढ़ गया पेस्टिसाइड बढ़ गया सब कुछ बढ़ गया किसान का मौत हो रहा है और फिर आप सिर्फ यील्ड के बारे में बात कर रहे हैं एंड टुडे why we need to understand this is today also they are saying the same thing HT mustard is going to bring high yield they said the same thing with BT cotton also no? Can you say something on this there are 2 points, where you are raising in 1964-65. जी उस टाइम पे PL 480 प्रोग्राम था, अमेरिका से गेहूं लाया गया। अब उस टाइम पे सिर्फ गेहूं दिया गया, फूड सिक्योरिटी पूरा देश में है बोल के फिर लाया गया गेहूं। आधा ऑलमोस्ट 75% भारत में गेहूं से ज्यादा चावल खाते हैं। तो ये इसी में अपने को समझ में आता कि ये पूरा एक साजिश था, कि हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रास्ते में चले। तो ये साजिश के बारे में बहुत रिपोर्ट्स भी आए गए। पहले स्वामीनाथन को भी इसके ऊपर आंसर देना पड़ा। तो वो अलग बात है। अब दूसरी बात है यील्ड के, क्यों अब यील्ड कैसा है, आप एक हाइब्रिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वो हाइब्रिड 2-3 साल के बाद उसका यील्ड कम होता जाता। लेकिन तो ये साइकिल ऑफ हायर यील्ड एंड डिक्रीजिंग यील्ड, this cycle is not reflected in the data, and which we are seeing clearly in BT cotton. हम बीटी कॉटन में देख सकते हैं 2004 या 5 से जैसा BT1, BG1 और BG2 लाया गया। पहले वो बोल रहे थे कि 18 क्विंटल बोले, फिर 14 क्विंटल बोले। आज जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का यील्ड है 2.5 क्विंटल्स है। तो ये अब एवरेज आप देखें तो भी 2.5 देश भर का एवरेज जस्ट 400 केजीज। तो ये पूरा लोग पूरा इसके अंदर जाके स्टडीज नहीं करते, और जो भी स्टडीज है वो उसमें आधा हाफ ट्रूथ हाफ नॉलेज स्टडीज हम देखते हैं। और दूसरी बात है, इसमें किसान को कैसा नुकसान हो रहा। अब हम तो बात करते हैं देश का धान बढ़ गया, हमारा फूड सिक्योरिटी आ गया, लेकिन किसान कैसा सड़ते जा रहा है। किसान का जो
इकोनॉमी कैसा कम होते जा रहा है, ये आप देख सकते हैं खुदकुशी के डेटा में। अब उनका इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बहुत स्टडीज है। जैसा 1989 में 89 में खुदकुशी शुरू हुआ कॉटन से, लेकिन जाते जाते आपको 1999 में भी फिर ज्यादा किसान खुदकुशी करने लगे। अभी पिछले 15 साल से तो हर साल कहीं भी न कहीं हर तरीके का किसान खुदकुशी कर रहा है। So this is an indicator that the economy of the individual farmer is going down, and this modern agriculture जो भी हम हाइब्रिड्स या जो भी हम उसके ऊपर ठोक रहे हैं, उससे किसान को नुकसान पहुंचा जाएगा। हम मुंबई में एक बार अभी 2020 में दिसंबर में महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर एक मीटिंग बुलाया था। वो मीटिंग में मैं था और सीड इंडस्ट्री थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे और कॉटन रिसर्च साइंटिस्ट भी थे। तो उस टाइम पे यही हम कॉटन का यील्ड को क्यों कम हुआ, फिर उसका क्वालिटी क्यों कम हुआ, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो सीड इंडस्ट्री वाले किसान को ब्लेम कर रहे थे, फिर रिसर्च वाले हम ऐसा करें तो किसान ऐसा करे बोले, फिर डिपार्टमेंट वाले बोले हम तो किसान को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। तो पूरे तीन मिलके जब ये पूरा फेल्यूर हो गया, तो वो फेल्यूर का जिम्मेदारी किसान के ऊपर डाल। तो मैं नहीं बोला, मैं आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन हियर रिगार्डिंग, जैसे मतलब पेस्टिसाइड या जो हमारे केमिकल यूरिया के बारे में तो बोलते हैं कि किसान, वो भी ब्लेम किसान के ऊपर डाल देते हैं, कुछ वास्तव भी है कि किसान ज्यादा डाल रहा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन बीज तो किसान खुद नहीं बना रहा है ना, वो तो कंपनी बना रहा है, तो वो कैसे किसान को ब्लेम कर रहे हैं? Any failures, they blame the farmer, right? So I can understand in case of chemicals, the urea या pesticide के बारे में, लेकिन जो बीज आपने दिया अगर वो फेल हो रहा है तो उसमें किसान की क्या गलती है? actually this is like this: when you bring a new technology, it will work under certain conditions. You have one, two, three, four conditions. जी So जी for BT cotton also, they said under these conditions, this will work in certain agroclimatic conditions. So over अच्छा a period, ये पूरा भूल गए, and it started marketing everywhere. So जो 8 or 9 agroclimatic zones है, उसमें सब हाइब्रिड्स, अभी 1200 बीटी हाइब्रिड्स है। कौन सा हाइब्रिड का कौन सा परफॉर्मेंस है, अभी तक कोई भी निजी रिपोर्ट नहीं है। हालांकि ये जिम्मेदारी था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, तो वो लोग नहीं दिए। तो मैं यही बात वो मीटिंग में जिक्र कर रहा था कि आप क्यों नहीं बताते कि ये हाइब्रिड का परफॉर्मेंस नहीं है, फिर ये मार्केट में क्यों है? तो एग्जैक्टली। इनका इनका काम नहीं करते हुए पूरा छोड़ देते, कोई भी वहां नहीं रहता, किसान के ऊपर जिम्मेदारी डालते। इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो भी टेक्नोलॉजी आप लाए हैं, आप ये टेक्नोलॉजी यहाँ का किसान को और किसानियत का जो कंडीशंस है उसमें आप कुछ टेस्ट करें तो मालूम होता। So, Dr. Reddy, now the most important question. Okay, hybrids were being made with the government institutions earlier, so there was not a problem. In the sense कि ठीक है अपना गवर्नमेंट है तो बीज का जो दाम था वो कम था, वो सब था, लेकिन अभी जो पूरे प्राइवेट सेक्टर में चला गया और हम देख रहे हैं कि हर साल बीजों का भाव भी बढ़ रहा है, उसमें फालतू बीज भी आ रहे हैं, मतलब स्पूरियस सीड्स आर आल्सो कमिंग। और हमने देखा कभी जैसे बायर के कंपनी के भी बीटी कॉटन के जो थे, जब किसान बहुत हजारों किसान जब बोए थे और फिर नुकसान हुआ था, उसका कोई भी कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिल रहा था किसान को, right? So how safe are these genetically? I'll come back. One important question one person, Mr. Rahul Sharma, has asked also with regard to contamination. वो तो बात नहीं है अभी, क्या अगर कंटेमिनेशन ना होगा तो भी क्या ये क्या बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स
किसान का कुछ फायदा होगा, या खेती का कुछ फायदा होगा, या हमारे खाने में कुछ अच्छा होगा, क्या होगा? इसमें पहली बात, किसान का बारे में बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं, जो सेंट्रल इंडिया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत तेलंगाना के नॉर्थ तेलंगाना, ये पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल है। ये कुछ 300-400 साल से कॉटन प्रोडक्शन करते हैं। तो उनका कॉटन प्रोडक्शन पूरा मिक्सड कॉटन प्रोडक्शन था। जब ये हाइब्रिड सीड लाया गया, वो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, फिर उसके बाद में मोनोकल्चर लाया गया, फिर बाद में अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लाया गया। तो अब ये सीड का यील्ड, मैं जैसा बता रहा था पहले, 14 क्विंटल था, 15 क्विंटल था, तो किसान खुश थे। हालांकि वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग बात है, लेकिन वो लोग खुश थे। लेकिन अब 2-3 साल के बाद वो काम नहीं कर रहा। BG2 started yielding less by 2008-9 itself. So we were having meetings with the agriculture department in Andhra Pradesh, and Monsanto representative agreed that this hybrid, PG2, has lost its efficacy. He agreed in 2009। फिर भी हम लोग अभी उसके बाद में भी हम इसका यूज कर रहे हैं। अभी तो इलीगल BG3 आया। तो इसमें इसका एक तो नुकसान बहुत है ईल्ड से। अब दूसरी बात है, जो नया पेस्ट भी आ रहे हैं। पहले कॉटन के ऊपर कुछ 240 पेस्ट आते थे, आज वो 350 हो गए। अब तीसरी बात है, फंगस आने लगा। नया BT कॉटन आने के बाद पहली बार उसमें फंगस आने लगा। अब ये फंगस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फंगिसाइड यूसेज ज़्यादा हो गया। तो फंगिसाइड यूसेज बढ़ गया, उसका खर्चा बढ़ गया, फिर उससे वो स्प्रे करते करते किसान पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होके उसका तबीयत और उसका सेहत भी कम होते जा रहा है। अब कंटामिनेशन की बात करें तो, जैसा पहले Cry1AC जीन, यू आर म्यूटेड। I'm sorry. Can you see this in this chat? Given that mustard is a self-pollinating crop, how much of outcrossing can happen? If I'm growing conventional mustard next to a field of GM mustard, can the pollen from GM cross with my mustard? Of course it will. But Dr. Reddy, can you talk on this? No, it is possible, cross pollination. Basically, even if it is self pollination, I think it can cross. Basically, we need to see there are three genes which are inserted into GM mustard. That's what I am not a scientist, but what I understood from science is that this bar star, and barnase genes have been introduced into mustard, and this will affect the amino acids and the entire plant metabolism. So when the contamination which we are talking about it, whether these genes will transfer to other non-genetically modified mustard, that we have to see, because that's what we are saying. As part of biosafety, bioefficacy trials have to be done. We need to look at that data. At least 20 types of tests have to be done to get that data. And theoretically, it's possible, because we are seen in Canada, GM canola, travel from across the road onto a organic farmer's farm, and Monsanto sued him for compensation, charging him for uh, uh, as a theft. That farmer has stolen the technology. So it is possible that contamination is possible when you look at what is happening elsewhere. Can we also see this now that we're talking about this issue of Monsanto suing the farmer? मतलब
किसान ने कुछ गलती नहीं की, वो खुद ऑर्गेनिक फार्मर था, वो अपना मतलब सरसों उगा रहा था, उसके बावजूद जो मतलब अक्रॉस द स्ट्रीट। और ये बात है कि कनाडा और यूएस में तो बहुत बड़े बड़े खेती के मतलब जो आपके फील्ड बहुत बड़ा होता है, एवरेज लैंड होल्डिंग इज एटलीस्ट 100 एकर्स मिनिमम। अब ये बंदे का जो कैनोला था, जो सरसों था, वो दूसरे बहुत लंबी जगह से हवा के माध्यम से इनके कैनलों पे कंटेमिनेट हुआ। एक्चुअली द फार्मर शुड बी सुइंग द कंपनी, लेकिन उल्टा ये हो गया कि मोन्सेंटो इज सुइंग द फार्मर फॉर स्टीलिंग their patented seeds, the patented seeds. Now this is a major problem with all these. Did we have issues of patents with hybrids, or is it a problem with दो चीज हो है यहाँ पे? तो एक ऑर्गेनिक फार्मर का खुद का जो क्रॉप था पूरा बर्बाद हो गया, उल्टा कंपनी वालों ने इनके ऊपर केस कर दिया, $1 million, some multi-million-dollar केस, saying that you stole our patented seed without our permission. I think similar thing has happened in either Punjab or Haryana, or was it in Gujarat, with reference to PepsiCo's Gujarat, potatoes. Gujarat. Yeah. Actually, it started with that one farmer in Canada. But if you look at Monsanto website, they mention how many cases they filed against farmers and how much income they got from the farmers by charging them for stealing their technology. So this has become a income stream for Monsanto. And in India, we इसको don't. इसको बोलते I हैं, know. इस, सर इसको बोलते हैं हिंदी में उल्टा चोर को डांटे। In India, we don't have a patent, but the problem is which happened. You mentioned in Gujarat. This is about aloo. This PepsiCo introduced a certain aloo, and they registered under PPFERA Act, basically as a breeder rights. But someone started producing chips out of the aloo, which are rejected by PepsiCo from the farmers. PepsiCo enters into contract with the farmers, and even though they promise that they lift the entire harvest, they select the harvest, and if it is 25 kgs, they might leave some 5 kgs with them and take 20 kgs. So these farmers started selling 5 kgs, and one bright entrepreneur, he started buying these 5 kgs, and he started producing chips in Gujarat. So instead of filing a case against that guy, this company thought they'll punish the farmers. So they filed a case against four farmers seeking some 12 crore compensation. So we challenged that, and PepsiCo backed down. But this is one indicator. Even though we don't have a patent, what kind of dadagiri these seed companies can do is unbelievable. That's one issue. But the contamination is another threat, real threat, because environmental contamination, once it happens, it is irreversible. So we will not know how and at what pace it spreads. So our varieties, which are good and high yielding varieties in mustard, they might get contaminated, and they will lose their efficacy. So ultimately, it will affect the mustard capacity, Indian capacity to produce good quality mustard, and that's a real threat which we are looking at. So, Rahul Sharma, I think your question was answered. Yes, there is absolute danger of contamination, and that's exactly why we are so worried. Because with hybrids, at least we didn't have to worry about so much about the contamination part. We still had the choice to grow our desi बीज. अगर हमें अपना देसी बीज चाहिए तो हम लोग लगा सकते थे हाइब्रिड्स के साथ। हालांकि हाइब्रिड कितना आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू डिप्लीशन हो गया, ये सब और बात है, but at least it was not as dangerous, I suppose, as the genetically modified seeds, right? Am I right, Dr. Reddy? Yes. Yeah. And Rahul Sharma also says that there are existing hybrid mustards
which are giving higher yields than even DHM level. Absolutely. There are, I think, more than 32, 32 varieties which, show a yield of 2000, 2200 kg of yield. But, our guys, they are saying this genetically modified yeah, variety will give 30% yield, which is absolute false data and false claim. They are not given any data on that. But the problem is one ex IAS officer, she wrote an article based on this false data, and she claims 30% अपना यील्ड बढ़ेगा, इससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं ये क्या अपना फॉरेन एक्सचेंज बताएंगे? कैसे बचाएंगे? उनका बताना है कि हम यील्ड बढ़ाया तो अपना जो इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, तो Hmm. उसको इंपोर्ट बंद होगा। लेकिन उनको पता है, लेकिन वो नहीं लिखे। पहली बात तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सिर्फ डिमांड के ऊपर नहीं होता। ट्रेड इज पार्ट ऑफ ए ट्रेड ऑफ। तो पूरा आप 10 प्रोडक्ट लिए तो हम लोग 10 प्रोडक्ट एक कंट्री को बेचते हैं, तो उसमें वो लोग कुछ 5 बेचते हैं। सो दिस इज ऑलवेज दे लुक फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एंड palm oil which we are importing very high is from Indonesia and Malaysia. And we have entered into ASEAN free trade agreement recently in Japan, and now we have to import in any way. So आप मस्टर्ड का यील्ड बढ़ाएगा तो भी आप वहाँ पर दस्तखत करें कि आप इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसा 2002 में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी मलेशिया गए थे, वो तो महातिर मोहम्मद वो प्राइम मिनिस्टर है, वो इनसे हाथ मिलाने को इनकार कर रहा था। क्यों बोले तो वो बोले हमारा 2 शिप मलेशियन पाम ऑयल शिप्स चेन्नई पोर्ट में रोका गया, आप उसको अलाउ करो तो मैं शेक हैंड दूंगा। तो जबकि जब दे वर अलाउड, एंड इन 2003 suicides by groundnut farmers in Anantapur started. Anantapur में groundnut is a, as you know, all our documents say, this is Staple crop. a arid crop. तो लोग जाते जाते ऐसा क्रॉप डालते हैं, उस वो लोग भी सुसाइड करने लगे। सो इट ओनली इंडिकेट्स ट्रेड इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट। और ये लोग ये जो आईएएस अधिकारी है उसको पता है, लेकिन वो बिल्कुल वो गलत मैडम जी का क्लेम कर। नाम भी तो बताइए सर, वो नाम रेनू कौन? सिंह, रेनू सिंह। एंड शी इज नाउ इन विच I think पोजीशन? she's retired. She's retired. She was there. I read an article recently, just 2 days back. So she was claiming that foreign exchange will be saved. And of course, not only her, many others are also saying that 76,000 crores. I said by increasing 30% yield, you are not going to save 76,000 crores. If that's the case, I think, you government of India can invest maybe 500 crores in groundnut or all our 9 oil seeds, and we can obviously avoid 76,000 crores. बट द सो अदर एस्पेक्ट अभी आप बताता हूँ 2000 अभी जो बजट प्रेजेंट हुआ 2022-23 में, नेशनल ऑयल सीड्स जो मिशन है वो मिशन को एलोकेशन नहीं है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत ये ऑयल सीड्स के लिए भी कुछ स्कीम है बोले, लेकिन उसके लिए भी जीरो बजट एलोकेशन है। तो पूरा काम करके सिर्फ पाम ऑयल को बजट दे के, वो भी नॉर्थ ईस्ट में वेयर दे विल डू डिफॉरेस्टेशन एंड देन प्रमोट ऑयल पाम प्लांटेशन। सो ये एक चल रहा है। और इसके बावजूद हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि 30% बढ़ेगा, फिर किसान को फायदा होगा। किसान का फायदा तो बात नहीं कर रहे, लेकिन
देश को फायदा होगा। मैं ये क्या बात बोल रहा फायदा? हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ देश का फायदा बाद में, किसान का फायदा आप कब बात करेंगे? आप बीटी कॉटन में किसान का फायदा बोले, किसान को कुछ नहीं हुआ। आप जो उल्टा मर गया, उल्टा मर रहे हैं। तो आप कृषि में आप डबल इनकम बोले, और डबल इनकम भी नहीं आया। फिर अगर ये जीएम मस्टर्ड से डबल इनकम आता क्या, प्राइस आप बढ़ता क्या? हम देख सकते हैं जैसा यील्ड बढ़ता, किसान को प्राइस घटता। हम अभी देख रहे हैं एप्पल हिमाचल प्रदेश में अभी उनका प्राइस घट गया। लहसुन का वही परिस्थिति है, आलू तो हम देखे, टमाटर का वही परिस्थिति है, ऑनियन सभी का हम देख रहे हैं। जैसा यील्ड बढ़ता किसान को घटता, प्राइस घटता है। तो और एक ये चीज, सॉरी, so Dr. Reddy, I want to ask one very crucial question. When we are talking about oil palm oil, ये तो एक और साजिश है जिसके वजह से ये पाम ऑयल को सबको रिफाइंड ऑयल खाओ 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 बोल के सबसे पाम ऑयल खिलवा के सभी को हार्ट का प्रॉब्लम चालू किया। ये तो राजीव जी दीक्षित जी बोल रहे थे, काफी लोग अभी सब जानते हैं। जैसे अभी अनंत को अगर मस्टर्ड का 30% अगर यील्ड बढ़ेगा तो भी वो देश को क्या फायदा होगा, क्योंकि मस्टर्ड सरसों का जो तेल है वो बहुत कम जगह पे खाते हैं। सरसों खाते हैं तड़का में, ठीक है, बट ऑयल जैसे अभी आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में हम लोग मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं। सेम विद कर्नाटका, अभी केरल में या कोस्टल एरियाज में सब लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। तो बाई देयर क्लेम, by trying to say that we are by increasing 30% we can stop import of palm oil। ठीक है, आप palm oil को अभी भी बंद कर सकते हो। साग भी खाते हैं जी, ठीक है, सही है, लेकिन वो बहुत कम लोग खाते हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ना कि पूरा का पूरा इंडिया का जो इंपोर्ट है वो बहुत मतलब कम हो जाएगा। पहले आपने आपका कोई ऑयल सीड प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी स्ट्रेटजी है ही नहीं। और दूसरी बात, अ, आपने जबरदस्ती पाम ऑयल को लोगों के सर के ऊपर थोप दिया, सबको रिफाइंड ऑयल खाने के लिए। तो व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट राइट नाउ टू हैव अ प्रॉपर, जैसे आपने मेंशन किया ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए कोई बजट नहीं है, वैसे खेती के लिए ही बजट नहीं है क्योंकि वो खुद भी घट रहा है बहुत सारे। जबकि 70 या 60% लोग आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये कृषि आधारित देश है। उसके लिए कोई बजट ही नहीं है आपके पास, और आप बोलते हो कि ये जो नया बीज है जो बहुत महंगे हो जाएंगे आगे जाके, और आपके जब खुद देशी बीज नहीं रहेंगे आपको तो हर साल हमेशा, forget about the dangers from the GM crops, the farmer is compelled या forced to buy the seed every year। और ये बात आपने अच्छी मतलब जिक्र किया था, जैसे बीटी कॉटन को बोला गया था कि आपके पेस्टिसाइड यूज कम होगा, लेकिन उल्टा पेस्ट भी ज्यादा हो गया और पेस्टिसाइड यूज भी ज्यादा हो गया, उल्टा फंगिसाइड भी यूज कर रहे हैं। और आज ये बोल रहे हैं कि एचटी मस्टर्ड में आप हर्बिसाइड डालो पहले। व्हाई शुड वी यूज अ हर्बिसाइड व्हिच इज डेंजरस? एंड उल्टा फिर बोलते हैं कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट, मतलब टू टाइप्स ऑफ पॉइजन। फर्स्ट, because first using a herbicide, they are saying it is glyphosate. We mentioned in the last episode also that glyphosate is not much different from glyphosate, glyphosate, or is it glyphosate? ग्लूफोसिनेट, ग्लूफोसिनेट नहीं, अभी तो ग्लूफोसिनेट है, लेकिन वो ग्लाइफोसेट से, ग्लाइफोसेट, हाँ ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट से ये ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज आल्सो इक्वली डेंजरस। ऑल दीज केमिकल्स वी हैव सीन दे हैव बीन डेंजरस। तो आपका क्या पॉलिसी है? यू वांट टू रियली मेक आवर फार्मर्स टू बी आउट आउट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना? क्योंकि वी हैव सीन एंड वन मोर थिंग, सो वन इज यू आर गिविंग दिस ग्लाइफोसेट, एक हर्बिसाइड डालने के लिए एंकरेज करने के लिए आप एक एचटी मस्टर्ड डाल रहे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड सम सिंपल सॉल्यूशंस। जैसे मैं खुद खेती कर रही हूँ, आई एम ग्रोइंग ग्राउंड नट, आई हैव फाउंड अ सॉल्यूशन इन यूजिंग अ मैकेनिकल वीडर, क्योंकि खरपतवार निकालना है। और खरपतवार में काफी ऐसे हैं जो हर्ब्स हैं, जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो हम खा भी सकते हैं।
सब्जी भी बना सकते हैं, ये सब चीज है. सो मच मोर इज देयर देन जस्ट रिड्यूसिंग द यूज. पहले तो आप हर्बिसाइड प्रमोट कर रहे हो, इसका मतलब एचटी के साथ साथ हर्बिसाइड प्रमोट होगा, उस वो पॉइजन है, और फिर उल्टा ये पॉइजनस सीड भी है. सो कैन यू से व्हाट हैज बीन, इतने लंबे सवाल करते हो, उनको बोलने का मौका दीजिए प्लीज. ओके, सॉरी, बट this is a crucial question regarding the policy. What is happening to our policy? Who is directing this policy? I think that is the important thing. क्योंकि अगर देश का हित चाहते हैं तो हम आप जैसे लोग बहुत हैं जो गवर्नमेंट को सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये जो भी गवर्नमेंट है, भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केजरीवाल हो, या जो भी है, they are not talking about the real policy decisions. Why is that? मैं तीन बात बताता हूँ. एक तो ऑयल पाम का जिक्र होगा. जी. ऑयल पाम आंध्र प्रदेश में 15-20 साल से किसान को वेस्ट गोदावरी यहाँ पर बहुत किसान डाले. अभी जो नेशनल ऑयल पाम फार्मर्स एसोसिएशन है, वो मेरा दोस्त है, मैं उनको काफ़ी एडवाइस भी देता हूँ. अभी क्या हुआ, अभी वो दिल्ली में है, फ्रेश फ्रूट बंच बोलते हैं उसको, जो प्राइस देने वाले थे पहले 20,000 था, अभी पिछले 6 महीने में वो कम हो गया, 14,000 हो गया. क्यों बोले तो अभी जो मार्केट में बिकॉज ऑफ रिसेशन इसका प्राइस बढ़ गया ऑयल का, तो उसको कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी है. तो अभी वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर मिनिस्ट्री के साथ की थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए ताकि किसान को कुछ प्राइस मिले. तो ये ऑयल में जो मैं पैसे पहले बोल रहा था, ट्रेड का फैक्टर भी होते रहता. तो ये ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन नहीं है कि हम या 30% बढ़ाए प्रोडक्शन, फिर वहाँ अपना बिल कम हो गया. दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन दैट. तो वो समझना चाहिए. अब दूसरी बात है, ये अपना ऑयल सीड, ये सरकार खुद बताते हैं कि ये पूरा ड्राई लैंड एरिया में उगाया जाता है. अगर आप ड्राईलैंड एरिया में एग्रीकल्चर बढ़ाना है तो आप ऐसा काम क्या कर सकते हैं, आप एमएसपी दे सकते हैं. 9 ऑयल सीड्स को आप एमएसपी फिक्स करके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करे तो उसका एकरेज बढ़ जाएगा. अब मस्टर्ड का क्या, सरसों का आप डेटा देख सकते हैं. पूरा 31 राज्य में सरसों का एकरेज है. तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हम लोग अचार में यूज करते, तो पूरा इस्तेमाल होता है, यूज होता है. लेकिन आ, ये अभी जो जीएम मस्टर्ड का बात है तो कंटेमिनेशन का, पहली बात ये है कि जैसा हम बीटी कॉटन में देखे, ये बैसिलस जो बैक्टीरियम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो पहले एक जीन इंट्रोड्यूस करे कॉटन में, फिर वो कम उससे वो कीड़ा नहीं मरता बल्कि फिर दूसरा इंट्रोड्यूस करे. तो उसमें क्या हुआ, एक एक बार एक्सप्रेशन जो उनका रिसर्च के मुताबिक वो एक्सप्रेशन बोल में आना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, अक्सर लीफ में आ गया, पत्ते में आ गया. तो वो पत्ते खा के जानवर भी मर गए. वारंगल में हम लोग देखें. तो अभी जो जीएम मस्टर्ड का जो जीन्स है, ये एक तो हेर्बिसाइड टॉलरेंट जीन एक है, फिर और दो ये कीड़े के लिए है. फिर इसका एक्सप्रेशन कब होगा, कैसा होगा, ये बहुत परेशानी की बात है. क्योंकि हम जीएम मस्टर्ड का जो मस्टर्ड का पत्ता खाते हैं, सरसों का साग है, तो अब किसान को पता नहीं कौन सा सीड, कौन सा बीज कौन सा है, तो इससे प्रॉब्लम होता है. लेकिन ये जीएम एडवोकेट्स क्या बोल रहे हैं, वो 10-20 साल से जीएम कैनोला खा रहे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ. अध्ययन स्टडीज नहीं हुआ अभी तक, स्टडीज नहीं है क्या हो रहा बल्कि. अब वहां पर जो स्टडीज है उसमें बताया जाता है कि कैंसर ट्यूमर्स आ रहे हैं. एलर्जी तो पहला बात एलर्जी है, और हम तो देखे जानवर मर गए, हमारे पास सर्टिफिकेट है वेटरनरी डॉक्टर का कि ये मर गए बिकॉज ऑफ दिस पॉइजन इन दिस लीव्स बोल के. तो कंटामिनेशन
in various ways is possible. अब ग्लूफोसिनेट का बात करें तो ग्लाइफोसेट इज ए नोन कैंसर कार्सिनोजन। उसके ऊपर अमेरिका में अभी कुछ 1500 1400 लोग मानसेंटो बेयर के ऊपर केस डाले और उसको कॉम्पनसेशन भी मिला। हालांकि हालांकि हमें समझ में आता है कि ये कार्सिनोजन है। ग्लूफोसिनेट भी उसी फैमिली का है और ये अमीनो एसिड्स के ऊपर उसका असर रहता है। अमीनो एसिड बोलता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म में उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा हम कहते हैं तो ये जो 3 जीन्स है, ये जीन का इम्पैक्ट क्या होता अभी तक पता नहीं। हनी बीज के ऊपर हालांकि होता, लेकिन जो खाते हैं हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन कब होता, कितना होता, कैसा होता, ये डेटा अभी तक सरकार बाहर नहीं लिया। अगर है क्या डेटा वो भी पता नहीं। दे आर नॉट रिलीज दैट डेटा। सो बायोसेफ्टी डेटा इज स्टिल द क्वेश्चन। एंड ग्लूफोसिनेट नाउ वी आर पुटिंग टुगेदर अ फैक्ट शीट। हम पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया के इसमें हम फैक्ट शीट ग्लाइफोसेट के ऊपर अभी 2 निकाले। हम महाराष्ट्र में स्टडीज भी कर चुके हैं ग्लाइफोसेट से और पैराक्वाट से हेर्बिसाइड से मरने वाले बहुत बढ़ गया। उड़ीसा संबलपुर बुर्ला में वहाँ एक अस्पताल है, वहाँ छत्तीसगढ़ के भी लोग आते। वहाँ के डॉक्टर इतना हैरान हो गए कि वो लोग धरना पे बैठे कि पैराक्वाट को बैन करो। तो ये हेर्बिसाइड्स जो भी है इससे बहुत नुकसान होता है। वो सॉइल के ऊपर होता है, प्लांट के ऊपर होता है। फिर उसका जो जो भी हार्वेस्ट है उसके जरिए रेसिड्यूज आगे आके हमारा फूड चेन में भी आ सकता है। तो ये पूरा जो चेन है ये इसके बारे में कुछ स्टडीज नहीं है। इसके बारे में कुछ भरोसे देने वाला एक भी आर्टिकल नहीं है और इसके बारे में कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है। जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग उसको जवाब देने के लिए भी कोई भी तैयार नहीं है। Dr. Reddy, one last question. So basically, ये बीजों के the question of control of agriculture, आज हमारे खेती को दशा दिशा कौन दे रहा है? हमारे Yeah, that गवर्नमेंट was दे रही है या कोई और दे रहा है? that was your question. But before that I'll add on the ग्लूफोसनेट। ये ग्लूफोसनेट हम जो फैक्ट शीट निकाला है उसमें ग्लूफोसिनेट का रजिस्ट्रेशन उसका इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो वो टी और कॉटन के ऊपर ही यूज करना है, इसका रजिस्ट्रेशन वही है। लेकिन आईकार इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च 2016 में एक रिपोर्ट लाया है, वो स्टेटस ऑफ हार्टिकल्चर बोल के। उसमें वो लोग उनको खुद लिखे है कि इट इज बीइंग यूज्ड ऑन वेरियस अदर फूड क्रॉप्स एज वेल। अब उनको मालूम है, पता है, लेकिन वो लोग रिकमेंडेशन बदलने के लिए भी तैयार नहीं। सो एंटी इलीगल एक्टिविटी इज डन बाय ICAR itself. It's a public body. Knowingly, it is allowing glufosinate. अब इनको भी पता है, जो अभी GM मस्टर्ड को रिलीज करे GEAC को भी पता है, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम किसान को यूज करने नहीं देंगे। अगर किसान को ग्लूफोसिनेट यूज नहीं करने देंगे, अब ये हेर्बिसाइड टॉलरेंट है, फिर आप किसान का हाथ बांध रहे हैं। फिर सीड कंपनी को वो सीड हेर्बिसाइड टॉलरेंट है तो हेर्बिसाइड टॉलरेंस हेर्बिसाइड यूज करना चाहिए। तो किसान का हाथ बांध के इसको रिलीज करके ये जीए से क्या बताना चाहती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं है, इट्स दे क्लियरली नो। आई नो दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, who is directing the Indian agriculture policy? It is increasingly being directed by corporates. उसमें दिस लॉबी ऑफ पेस्टिसाइड कंपनीज है और सीड कंपनीज है। अब दोनों मिल गए भी, आप देख सकते हैं। जैसा बीटी कॉटन में बेयर है, बेयर का पेस्टिसाइड प्रोडक्ट है।
फिर उसका सीड प्रोडक्ट है। तो ये दोनों मिलके एग्रीकल्चर पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं अभी। दूसरी बात है, अब क्लाइमेट चेंज COP27 हो रहा है इजिप्ट में। हम वहां से भी देख सकते हैं कि जैसा क्रॉप लाइफ इंटरनेशनल और इनका जो भी लॉबीज है, वो लोग नया रिविजनिंग एग्रीकल्चर बोल के, डिजिटल एग्रीकल्चर बोल के, they are now influencing Niti Aayog, and Niti Aayog has brought out 2-3 reports saying we'll modernize Indian agriculture. तो डिजिटल एग्रीकल्चर में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, हेर्बिसाइड टॉलरेंट सीड्स, ये पूरा उसमें मिला के वो लोग बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ड्रोन स्प्रेइंग भी इज पार्ट ऑफ दिस। So this is what is digital agriculture, is it? I think No, this is also about the data of agricultural holdings that they are going to steal. this is one part of this, a very small part, but a very basic part of this. Digital agriculture is mostly about, controlling, control by a supplier, a business service guy. अभी अब GM मस्टर्ड किसान डाला, फिर उसको एक ऐप दिया जाएगा, फिर वो ऐप लेके फोन पे लाके कुछ कीड़ा आया, कुछ फंगस आया, तो उसका फोटो निकाल के भेजे, तो वो लोग ऐप के इसमें वो लोग रिकमेंडेशन करेंगे, ठीक है आप ग्लूफोसनेट यूज करो, या तो और कुछ कोई पेस्टिसाइड यूज करो, वो बोल के बताएंगे। सो इससे उनको डेटा भी मालूम होता है कि कौन सा पेस्ट कौन सा टाइम पे कहाँ आ रहा है, और कौन सा किसान कितना ये यूज कर रहा है, कि सीड कितना यूज कर रहा है। तो ये पूरा डेटा, बिग डेटा इज आल्सो बिजनेस। तो ये बिग डेटा के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ड्रोन स्प्रेइंग, फिर ये पूरा फिट नहीं होता है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो आप तब क्या बोलेंगे, ये किसान एग्रीकल्चर से बाहर जाना, इसको किसान खेती करना नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेज दो, और हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे। इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आज सब्सिडाइजेशन और एंकरेजमेंट बढ़ते जा रहा है। Okay, one last question. We are running out of time, but very crucial question. Where does the farmer stand? See, there was a policy by Manmohan Singh also during his time also. अभी तो कांग्रेस बोलती है हम इसके खिलाफ है उसके खिलाफ है, but whoever is there, they are saying the same thing with reference to GM crops. We have seen it. Other than Jairam Ramesh, everyone was promoting the GM crops. So during Manmohan Singh time also, Chidambaram has written that only 15% people should be in agriculture, rest should be out. And the same thing even the BJP government has said, right? 15%. They want to push people out of agriculture. So, and on one hand, this is going. On the other hand, there are multiple so-called public purpose projects for which they are pushing farmers out of their land. They are doing the land acquisition. जबरदस्ती किसानों की जमीनें खींची जा रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये सारी साजिश हो रही है कि किसान को कैसे तो भी, मतलब आधे तो मर जा रहे हैं रोज सूली पे चढ़ के। तो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? Actually, the the changes, as you rightly said, irrespective of the party in power, the policies have been continuously pushing for this kind of agriculture since 1995. जब हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम दस्तखत करें विदाउट पार्लियामेंट का अप्रूवल, और पार्लियामेंट में डिस्कशन के बिना ये जो दस्तखत हो, वहां से आप देखें तो एक एक स्टेप ये इसकी तरफ जा रहा है। अभी लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये हर साल अब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स को वहां बुलाते, फिर इनके मन में बिठाते कि एग्रीकल्चर ऐसा करो, फिर वो वीडियोस बताएंगे कि बड़ा बड़ा मशीन से कैसा एग्रीकल्चर कर रहा है, और वो लोग बताते यील्ड है। अब आप देख सकते हैं अमेरिका इतना बड़ा मशीन से, इतना बड़ा लैंड होल्डिंग से एग्रीकल्चर करने का बाद, उनका जो हार्वेस्ट है वो बेचने के लिए
किस किस के पीछे भागना पड़ता। हम देख सकते हैं अफ्रीका के पीछे, और कई जगह वो लोग जाके उसको बेचने के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये यील्ड बढ़ा के, ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इटसेल्फ हैज लॉट ऑफ हॉलोनेस इन दैट। तो ये मॉडल को हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और अभी जो पैंडेमिक महामारी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि आम किसान के पास खाने के लिए कमी हो रहा है। मैं तो हैरान हो गया जब महाराष्ट्र में किसान सुबह का खेत को जाने के पहले एक 5 रुपये का बिस्किट पैकेट खा के जा रहा है। वो भी खरीदा गया बिस्किट पैकेट, वो मैदा होता है, 5 रुपया का बिस्किट पैकेट। तो मैं पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं? सुबह आप अच्छा कुछ नाश्ता करके काम में गया तो आप कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन किसान के पास खाने के लिए है ही नहीं। So a monoculture, industrial agriculture, which is being pushed down rammed down the throats of the farmers and India, it is killing farmers, and they are happy because over a period there will be no farmer to do the farming, and then they'll take over all this land and they'll say, okay, now we'll bring you digital agriculture. So ये जो the change, one is in rural areas in India today it is very quite hazardous because pesticide use has increased multiple times. Now we are using two lakhs 55,000 tons of pesticide every year, and where even 50 milligrams is a hazardous toxic poison. तो हम हर साल ये यूज कर रहे हैं, एंड दीज आर फॉर एवर केमिकल्स। दे विल स्टे फॉर एवर इन द सॉइल, दे विल स्टे फॉर एवर इन द वाटर, एंड दे विल नॉट लीव दी, एंड दे विल डिस्ट्रॉय लाइफ अराउंड दैट। तो किसान के लिए खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपना अपना हाथों से हम लोग उसका जो अनकल्टिवेटेड फूड है वो पूरा वो मार के और वो कॉटन उगा रहा है। सो दिस इज अगेन वी आर लुकिंग एट एज एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी। तो ये एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा कपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दो चीज है। एक तो पिछले 15 साल में बीटी कॉटन आने के बाद सीड इंडस्ट्री का टर्नओवर जब 3,000 करोड़ था, आज 1800 18,000 करोड़ हो गया, ओनली कॉटन सीड। And the kisan who is paying all this money, he is dying, and unka income, and average each farmer is ending up with 1.5 lakh to 2 lakhs कर्जा डेट है उसके ऊपर, every farmer's family. And of course agriculture labor is another pathetic situation. तो हम जो ये जो मॉडल which includes genetically modified seed, which includes highly hazardous pesticides, which includes this digital technologies. I think this is causing environmental impacts. It is also having economic impact, and it is also threatening food security. And I think another 2 3 years down the line, you will find many barren lands across rural India. You are silent, muted. The final solution, Dr. Reddy, I think, is to go back to the land. More and more people should start working on the land in a natural way. The natural farming, I remember Sri Namalwarji, who was a pioneering natural farmer. He said that we are only talking about yield. We are not talking about the losses that happened with other foods, that we were all eating wholesome food, जिसका कोई जिक्र नहीं करता है कि हम अलग अलग चीजें खा रहे थे। जैसे अभी आपने कहा एक किसान के पास खाना नहीं है। आज जो पहले किसान जो है अपना सारा सामान जो उसके घर में घर के लिए चाहिए था वो पहले उगाता था, जो भी एक्स्ट्रा था वो बेचता था। द प्रॉब्लम हैपेंड बिकॉज
फार्मिंग को एक बिजनेस बना दिया था, और जो खेती जानता है किसान, वो तो बस अभी मर रहा है, और जो कंपनियां हैं वो जा रहे हैं। तो माय क्वेश्चन इज, अभी एवरीबडी इज टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकली, बट not a single political party is having in its manifesto that we will support organic farming, natural farming, deshi beej. कोई भी क्यों नहीं बोल रहा है? When that is evident, it is evident, the solution is there. In fact, just today I've seen a farmer who is growing mustard. He has compared the yields. He said he is achieving, very high yields than what is being claimed by this new variety which is released. So, Indian farmers, if you leave them on their own, they have the solution. They have found the solutions, and they can grow. They can, increase the yields. The next step has to be by the government, because government has to encourage them by incentivizing such production, and it also should provide a good income by giving them proper price in the markets. I think that's the simplest demand coming from the farmers. हमारे को market price, assured market price. They are not even asking for fortune. They are simply saying हमारा खर्चा इतना है, ये खर्चे के मुताबिक आप इतना हमारे को प्राइस अश्योर करो. And till today, none of these people have been able to work out how that income can be assured. There we have given lot of solutions, and of course farmers themselves are finding solutions. वो हो सकता है, लेकिन I think the big problem is the middle class in India, which they don't understand the agriculture in India, the farmers, and they go by this propaganda which is pushed in the media. So they think, whatever is coming from abroad is good, nutritious, and they start eating, this palm oil. So they don't even understand the nuances and how they are being, pushed into consumption patterns, which is against our own health, against our own income. Today, when palm oil is even 180 rupees, it is not palm oil. You know what? Whatever packet we are buying, it can contain only 45% of that basic oil, and any other oil can be mixed in that. This has been questioned. So when I'm buying groundnut oil, I'm not sure how much of this includes other oils. So ये ऑयल के बारे में भी बहुत बड़ा economy, and a lot of people are making money out of it because it is profitable. Adani has entered into this, and now his freedom oil is dominating the market, and that was डॉक्टर रेड्डी, माय क्वेश्चन अगेन, थोड़ा डाइग्रेस हो गए आप. माय पॉइंटेड क्वेश्चन इज, व्हेन जब सॉल्यूशन सामने है और किसान दिखा रहे हैं, क्योंकि दे हैव बीन मेनी पायनियरिंग फार्मर्स हु शोड द सॉल्यूशन इज गोइंग बैक टू नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डाइवर्स फार्मिंग, ये सब दिखा रहे हैं, है ना? तो कोई भी पार्टी होने दो, उनका पॉलिसी चेंज क्यों नहीं होता है? हु इज कंट्रोलिंग देम? one is, they don't sit and listen. As I mentioned many times, when we go to them or talk to them, or when the Kisan comes to them, they don't even listen to them. But on the other hand, when they are invited by these big companies, they go to five-star hotels, sit for 3-4 hours and listen to that. अगर आप वहां सुनेंगे तो यहाँ भी आप सुनिए, पूरा बात सुनिए. They don't listen completely, so they think that's a solution. That's one. Second is, they are controlled by the finances. So jaisa, the money comes in, money controls everything. So political parties, they don't even want to listen because their money comes from elsewhere. Many of the MLAs across India, they have the seed business. They are in pesticide business. So they don't want to listen to the alternatives.
And basically, ultimately, why political leaders are not promoting this alternate. Basically, what is Indian agriculture is profits. When we go to the farmers, most of these people will lose their money. So उनको फायदे करने के लिए political parties are reluctant to take action. Thank you so much, Dr. Reddy. It has been a very, very enlightening talk. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दोस्तों हम और भी करेंगे अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसी के ऊपर more enlightening talks, more important personalities who are working on this issue. And आप हमसे जुड़िए अगले हफ्ते भी हम लोग आपसे आपको बताएंगे. So you can join our area-wise groups to connect with our local activities. जैसे हमने वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया, हम ये जीएम क्रॉप्स के ऊपर भी हमको काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए. और क्योंकि अभी समय का अभाव है, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ. थैंक यू धन्यवाद. डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी वंस अगेन. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. नमस्कार.